Friends, welcome to From Classes channel. Today we will know such a mass communication theory that belongs to general elections, and this is connected, directly connected to all of us, to all of voters. Do you know how we are attracted to the winner party, not other party? You are not opposition party. In other words, what is the component for which one party wins by more votes than opposition? That is, yeah, friends, you are thinking right. That is the agenda setting theory. Friends, do you know what is agenda setting theory? Friends, agenda setting theory means this theory belongs to only media. Friends, do you know that media and society are depend on each other? Without media, society is nothing. And without society, media can't work. Friends, this theory discusses the media's influence on society by controlling what to think about and how to think about. Friends, do you know how it can be happens? Then friends, this happens by emphasizing the certain news repeatedly. Friends, do you know that the power of media is not as a fourth pillar? Today, that is works as a first pillar of a democracy. Friends, I want to say that media shows only selective news, not comprehensively. And second is media prominence, only selective news, not others news. So that it say that if you controlling or if you take whole media in your power, in your limitations, then you can win every war. You can take win and result in your favor in any situation. Friends, today's political wars or political things are based on media. And media influencers know that youth of India and youth of world and voter of India is using very much social media. Friends, so the social media creators of parties take such things that can attractive the young voters, because the voters is only one thing that can be mold the result of election. Friends, if you attract only youth, your half work is done. It's a well beginning is half done. Friend, do you know that social media influence you or me very much every day, every moment, because agenda setting is so on every type of media, every stages of media, every thing on media,
That is agenda setting theory. Friends, do you know from first day of this theory or who formulated this theory? Friends, Dr. Maxwell Macomb and David Lewis Shaw formulated this theory in 1968 by studying the presidential election, and this come by result that agenda setting can be mold every result at every step. Friends, we can say that we can mold or attract the result of every war, every election at one night only. Friends, you will assume, can you assume that the election in India is playing on social media, not only base? Because which agenda comes for you, your comes or meet to you, that is agenda setting. Friends, now we know this story in Hindi. Friends, दोस्तों आपको पता है कि ये एजेंडा सेटिंग आखिर है क्या चीज? दोस्तों एजेंडा सेटिंग वह है जो कि मीडिया के द्वारा बार बार आपके दिमाग में बैठा कर और आपकी राय को जीता जाता है, राय को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। दोस्तों आप किसी को वोट क्यों देंगे? आप किसी को मत क्यों देंगे? यदि आप वोटर्स हैं तो मेरा एक ही कहना है आपको दोस्तों, बीच में आपको संदेश देना चाहूंगा कि वोट किसी को दें, लेकिन देना है, हमारा अधिकार है वोट देना, क्योंकि लोकतंत्र की जो नींव है वो किस पे रखी गई है? वोट पे रखी गई है, उस मत पे रखी गई है जो कि आप बैलेट का बटन दबाकर देते हैं। दोस्तों हमें देना है, वोट देना है, क्योंकि अभी आम इलेक्शन हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, तो हमें उसमें अपनी भागीदारी निभानी है। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। दोस्तों पार्टियां क्या करती है? अपने एजेंडा को जनता तक पहुंचाने के लिए हर मीडिया को अपना टूल बनाती है, लेकिन जो पार्टी यह जानती है कि मुझे मेरे वोटर के लिए मीडिया के रूप में कौन सा टूल अपनाना है, वह सबसे ज्यादा पावरफुल रहती है और जीत भी उन्हीं का वर्णन करती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, वर्तमान युग में पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वोटर्स कहां पे है? यंग वोटर्स। मैं कहना चाहूंगा क्या यंग वोटर्स का है? वो है भारतीय लोकतंत्र के अंदर दोस्तों। और यहां का युवा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है। और दोस्तों पार्टी को पता है, जो विनिंग पार्टी है ना, उसको पता है कि युवाओं को कैसे आकर्षित किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। तो दोस्तों वो क्या करते हैं? युवाओं की उस नब्ज को टटोलती है जिससे कि वो खुश होकर खुशी खुशी अपना वोट उनकी झोली में डाल दे। वो चाहे रोजगार की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, या कोई उनके ही जीवन से जुड़ी अहम बात हो, या उनके पक्ष में करने की बात हो, या उनके साथ में चलकर बात करने की बात हो। दोस्तों बात ये नहीं है कि हम मीठी मीठी बातें करें। दोस्तों एजेंडा ऐसा होना चाहिए जो आप पूरा कर सके। दोस्तों जिसने पूरा नहीं किया ना, वो क्या होगा? एक बार तो आपने वोट ले लिया, लेकिन 5 साल बाद आप भूल जाएंगे कि वोटर कौन था, और तो वोटर भी भूल जाएंगे आपको कि आपने हमसे क्या वादा किया था और क्या आपने किया। तो दोस्तों जो पार्टियां या जो दल अपने किए हुए या बताए गए एजेंडा में से आपको वो पूरा नहीं तो कुछ 80% आपसे जो आपसे वादा किया वो पूरा करे, वही पार्टी या दल
आपका वोट हासिल करने में सक्षम रहती है दोस्तों, या वो कर पाती है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, ये जो है ना एजेंडा सेटिंग, ये रातों रात परिणाम बदलने वाली ताकत है दोस्तों। यह वह पावर है जो ऐसा दिखता है कि पार्टी जीतने वाली है, लेकिन दोस्तों परिणाम कुछ और ही होता है, क्योंकि एजेंडा सेटिंग में वह पावर है। क्यों है पावर? क्योंकि जो एजेंडा सेटर्स है ना, वो खेलते खाते बच्चे नहीं है। वो ऐसे एजेंडा सेट करते हैं मार्केट रिसर्च करके कि उनके पता है कि युवा कब और क्यों और कैसे हमारे पक्ष में वोट देंगे। तो दोस्तों आज की जो थ्योरी है ना, वो खाली मास कम्युनिकेशन की थ्योरी नहीं है। मेरी हर थ्योरी हमने जो बताई है, परम क्लासेज ने जो भी मास कम्युनिकेशन की थ्योरी बताई है, वो आपके आम जीवन से जुड़ी हुई थ्योरी बताकर उसे सरल शब्दों में बताए। और यह भी थ्योरी यदि आपके जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो आप कमेंट में बताइएगा कि नहीं है। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर किसी से यह थ्योरी कनेक्टेड है दोस्तों। यदि कनेक्टेड नहीं होती तो एक पक्ष निर्विरोध की तरह जीतता है और दूसरा अपने हथियार डाल देता है दोस्तों ये चीज है एजेंडा सेटिंग। देखिए युग चाहे कोई भी हो, एजेंडा हमेशा चला है, चाहे महाभारत का युग हो, चाहे रामायण का युग हो, चाहे वर्तमान युग हो, चाहे कल रहा हो या आने वाला हो या आज हो, एजेंडा सेटिंग हमेशा रहेगा। दोस्तों देखिए, यदि मैं आपके अनुसार आपको अच्छे अच्छे टॉपिक नहीं बताऊंगा तो क्या आप मेरे को मत देंगे? क्या आप मेरे को कमेंट करेंगे? क्या आप बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे? कभी नहीं करेंगे। दोस्तों यही तो एजेंडा सेटिंग है। मेरा एजेंडा क्या है कि मैं आपको जो प्रॉमिस किया है हर रोज आपको नया टॉपिक देने की, तो वो लेके आऊं, लेकिन मैं नहीं आया तो क्या होगा? ये एजेंडा सेटिंग फेल हो जाएगी। तो दोस्तों एजेंडा सेटिंग ये नहीं कहता है कि आप बहलाओ फुसलाओ। एजेंडा सेटिंग ये कहती है यदि आपको कुछ हासिल करना है या आपको अट्रैक्ट करना है तो वो ऐसा करिए, तभी आप विश्वास हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज आपने जानी एक नई थ्योरी, एकदम अलग अंदाज में एजेंडा सेटिंग को, और यह भी जाना कि किसने फॉर्मुलेटेड किया, फर्स्ट टाइम कब किया और क्यों किया, और दोस्तों इसका मीनिंग भी जाना। तो आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है ना, और पीआरओ जो कि आरपीएससी ने फॉर्म निकाले, और एनटीए यूजीसी का जो नेट का एग्जाम होने वाला है, इन तीनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्यों ना आप बेल आइकन दबाएं हमारा, और क्यों ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे वो लिख डालें जो आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आपसे रुखसत होने का मन तो नहीं करता है, लेकिन दोस्तों अपने दोस्त को विदा तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो यह वो नया टॉपिक लेके आएगी जो कि आपके मन में तो है, पता नहीं क्या है, क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये जानने के लिए हमें कल इसी टाइम इसी चैनल पर वापस मिलना पड़ेगा। तब तक देखते रहिएगा परम क्लासेज चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।